Hello students, in this video we are going to read a poem from your English Beehive book. The name of this poem is Rain on the Roof, written by Cord Skinney. So the writer was actually from US and he was a politician and a journalist as well. Okay, so let's read the poem written by him. So as the name suggests, this poem is written on rain. Okay, in this poem, the poet is actually sitting inside a room and he is listening to the sound of the rain over his head on the roof. Okay, तो वो एक रूम में बैठे हुए बारिश की आवाज़ को अपनी छत पे जो बारिश आवाज़ कर रहा है उसको सुन रहे हैं. And that is the situation which inspires him to write this poem. Okay, so what he writes, let's read. When the humid shadows hover over all the starry spheres, and the melancholy darkness gently weeps in rainy tears. Okay, when the humid shadows, humid word का मतलब क्या होता है? Full of moisture. Okay, full of water. So, what do you mean by humid shadow? Here, the phrase humid shadow refers to clouds. Okay, humid shadow का मतलब है यहाँ पे cloud. When the clouds hover over the starry sphere. Hover, H-O-V-E-R, hover means to remain overhead, मंडराना. Okay, किसी चीज़ के ऊपर, सर के ऊपर रहना. So the clouds are over the head, over the starry sphere. तो जब ये humid shadow means the cloud comes to the starry sphere यहाँ पे क्या है? Of course, the sky. Sphere means an area, and starry which is full of stars. So what is full of stars? The sky is full of stars. तो यहाँ पे starry sphere का मतलब हो गया the sky. So these two lines actually mean when the clouds come and settle over the sky. जब आसमान में बादल छा जाते हैं. Okay, and the melancholy darkness gently weeps in rainy tears. Okay, then this melancholy darkness, melancholy word का मतलब होता है sad. Okay, जो बहुत दुखी होता है, that is melancholy. The melancholy darkness, फिर एक अंधेरा छा जाता है. The darkness is described as melancholic. हमेशा अंधेरे को दुख के साथ जो है रिलेट किया जाता है. तो एक दुख भरा डार्कनेस आता है. And then it gently weeps in rainy tears. फिर वो डार्कनेस रोने लग जाता है. एक्चुअली रेन को पोइट इस तरह से डिस्क्राइब किए हैं कि जैसे डार्कनेस रो रहा हो. ओके, इट वीप्स रेनी टीयर्स. वीप मतलब रोना. और बारिश के आंसू रोता है. कौन रोता है? ऑफ कोर्स द डार्कनेस. सो विच पोइटिक डिवाइस हैज़ बीन यूज्ड हियर? Okay, we will discuss about it later. Then come to the next one. What a bliss to press the pillow of a cottage chamber bed and lie listening to the patter of the soft rain overhead. Okay, तो फर्स्ट स्टैंजा में पोइट ये बोलते हैं कि जब आसमान में बादल छा जाते हैं, एक अंधेरा सा हर जगह छा जाता है, and that darkness then starts to cry. Okay, means it starts to rain. तब जब बारिश आती है. फिर सेकेंड स्टैंजा में क्या बोलते हैं? What a bliss to press the pillow of a cottage chamber bed and lie listening to the patter of the soft rain overhead. तो जब बारिश होती है ये कितना अच्छा लगता है. Bliss means peace, happiness. ये करने में कितना मज़ा आता है. क्या करने में? To press the pillow. Press the pillow means to put your head on the pillow. जब हम अपना सर रखते हैं पिलो के ऊपर तो थोड़ा प्रेस हो जाता है, राइट? To put your head on the pillow and lie down on a cottage chamber bed. Okay? एक कॉटेज में एक बेड पड़ा हो, उस पे पिलो पे आराम से लेट जाना and listening to the patter. Patter means here the sound of rain. Okay? The noise of rain. और उस पिटर पैटर आवाज़ को सुनते रहना of the soft rain overhead. तो उस बारिश के पिटर पैटर नॉइस को अपने सर के ऊपर सुनते रहना. How beautiful that feeling is. The writer says how blissful that feeling is. To press the pillow means to lie down on a bed,
putting your head on the pillow and just listening to the sound of the rain overhead. Okay, then every tinkle on the shingle has an echo in the heart. Every tinkle word का मतलब है the ringing sound. Okay, तो बारिश जो रिंगिंग साउंड कर रहा है छत के ऊपर, एवरी टिंकल ऑन द सिंगल. ओके, सिंगल वर्ड का मतलब होता है टाइल्स. तो जो छत पे जो टाइल्स पड़े हुए हैं उसके ऊपर जो बारिश के बूंदे पड़ते हैं तो वो जो टिंकलिंग नॉइज होता है, दैट एवरी टिंकल हैज़ अ इको इन माई हार्ट. वो नॉइज मेरे हार्ट में इको क्रिएट करता है. इको वर्ड का मतलब आप जानते हो. ओके, जो आवाज़ बहुत दूर तक ट्रैवल करता है फिर रिफ्लेक्ट बैक करता है, दैट इज़ इको. सो दैट noise of the tinkling noise on the single on the rooftop is actually coming and echoing in my heart. Okay, that means that noise is very heart touching for me. Okay, and 1,000 dreamy fancies into busy being start. Then what happens जब वो बारिश की आवाज़ मेरे हार्ट को टच कर लेता है, then 1,000 dreamy fancies. फैंसी वर्ड का मतलब होता है फैंटेसी, अ डिज़ायर. हजारों डिज़ायर्स मेरे दिमाग में बनने लगते हैं. इनटू बिजी बीइंग स्टार्ट मीन्स क्रिएट होने लग जाते हैं. वो सारे फैंटेसीज बिजी हो जाते हैं बनने में. ओके, दे स्टार्ट्स टू कम इनटू माय माइंड. सो दिस फैंटेसी स्टार्ट टू कम इनटू माय माइंड एंड 1,000 रिकलेक्शंस. रिकलेक्शन क्या होता है? कलेक्टिंग द मेमोरीज अगेन. ओके, जो मेमोरीज है उसको वापस से कलेक्ट करना. तो हजारों मेमोरीज मेरे दिमाग में वापस आ जाते हैं एंड दे वीव देयर एयर थ्रेड्स इनटू वुफ. ओके, तो ये हजारों मेमोरीज बुनने लग जाते हैं मेरे माइंड में. सो दे स्टार्ट्स टू वीव देमसेल्व्स. ओके, जैसे मेमोरीज एक एक थ्रेड हो और ये सारे मेमोरीज एक साथ बुन के कोई एक पैटर्न बना रहे. कोई एक वुफ का मतलब होता है अ पैटर्न ऑफ वीविंग. ओके, so what he says in this stanza actually, that when the rain drops fall on the rooftop, it creates a certain sound that echoes in my heart. Means that actually touches my heart, that brings a kind of nostalgic feeling inside me, which brings back 1,000 memories, and that memory starts to weave themselves up. Okay, अपने आप को बुनने लग जाते हैं. जैसे लगता है जैसे मेमोरीज एक एक धागे हो और वो बुन के एक बड़ा सा क्लॉथ सा बन गया हो मेरे माइंड में. ओके, एज आई लिसन टू द पैटर ऑफ द रेन ओपन द रूफ. ओके, तो ये सब कब होता है? जब मैं वहाँ पे सोए सोए लेटे लेटे रेन की आवाज़ को सुनता हूँ रूफ के ऊपर. ओके, नाउ कम टू द लास्ट स्टैंजा. नाउ इन मेमोरी कम्स माई मदर. ओके, इन द लास्ट स्टैंजा ही इंट्रोड्यूसेस हिज मदर. तो अब मैं जो हज़ारों चीज़ें सोच रहा हूँ, हज़ारों मेमोरीज जो मेरे मन में आ रहे हैं, उनमें से एक डोमिनेटिंग मेमोरी है किसकी? मेरी माँ की. नाउ इन माई मेमोरी कम्स माई मदर. मेरी अब माँ आती है मेमोरी में. एज सी यूज्ड इन ईयर्स अगॉन टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर एर से लेफ्ट देम टिल द डॉन. तो मुझे क्या याद आ रही है उनके बारे में? जैसे वो सालों पहले, अगॉन मीन्स एगो, ईयर्स अगो, जैसे वो आती थी. टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर. हियर हु इज द डार्लिंग ड्रीमर? द पोएट हिमसेल्फ. ओके, सो ऑफकोर्स ही वॉज डियर टू हिज मदर. तो मम्मी उनसे बहुत प्यार करती थी. सो ही वॉज अ डार्लिंग टू हिज मदर. एंड ड्रीमर इसलिए बिकॉज ही वॉज ऑलवेज अ ड्रीमर, ही वॉज ऑलवेज थॉटफुल. ओके, सो हियर द फ्रेज डार्लिंग ड्रीमर actually refers to the poet himself. Okay, so जैसे सालों पहले वो आती थी अपने डार्लिंग ड्रीमर को रिगार्ड करने के लिए. रिगार्ड मीन्स टू लव एंड रिस्पेक्ट. यहाँ पे रिस्पेक्ट तो नहीं, ऑफकोर्स लव. जैसे मुझसे प्यार करने के लिए सालों पहले वो आती थी और मेरे पास बैठती थी, प्यार करती थी, मुझे फॉन्डल करती थी. एर से लेफ्ट देम टिल द डॉन. ओके, तब तक छोड़ के नहीं जाती थी जब तक dawn, DAWN, dawn means the point of time where the sun actually sets. Okay, that moment जब एक्चुअली में सनसेट होता है, दैट पॉइंट इज कॉल्ड dawn. तो जब तक सनसेट ना हो जाए तब तक वो छोड़ के नहीं जाती थी. एर से लेफ्ट, ERE, एर का मतलब होता है बिफोर.
ओके, बिफोर सी लेफ्ट देम टिल द डॉन, ओके, डॉन तक मेरे साथ रहती थी पर उससे पहले वो जाती थी, चली जाती थी। जैसे वो सालों पहले ये चीज़ किया करती थी, वो सब चीज़ें मुझे अब याद आ रही है। ओह, आई फील हर फॉन्ड लुक ऑन मी, फॉन्ड मीन्स लविंग, ओके, आई फील हर फॉन्ड लुक ऑन मी, वो बड़े लविंगली अभी भी मुझे देख रही है, एंड आई कैन फील दैट एज आई लिसन टू दिस रिफ्रेन विच इज़ प्लेड ऑन द सिंगल्स बाय द पैटर ऑफ द रेन। तो क्या बोलते हैं, एज आई लिसन टू दिस रिफ्रेन, जैसे मैं, LIST लिस्ट एक्चुअली इज़ द शॉर्ट फॉर्म ऑफ लिसन, ठीक है, आपको लिसन ही पढ़ना है इसको। जैसे मैं यहाँ लेटे लेटे इस रिफ्रेन को सुन रहा हूँ, ओके, रिफ्रेन क्या होता है, समथिंग दैट रिपीट्स अगेन एंड अगेन। मैंने कभी बताया होगा कि रिफ्रेन भी एक पोइटिक डिवाइस है, जब एक लाइन एक स्टैंजा में बार बार रिपीट किया जाता है या फिर एक पर्टिकुलर वर्ड रिपीट किया जाता है, दैट इज़ कॉल्ड अ रिफ्रेन, राइट। वो तो पोइटिक डिवाइस का हो गया, बट लिटरली रिफ्रेन का मतलब होता है समथिंग दैट रिपीट्स इटसेल्फ, ओके, जो बार बार रिपीट होता है। सो हियर व्हाट इज बीइंग रिपीटेड, ऑफ कोर्स द साउंड ऑफ रेन। सो जैसे मैं यहाँ पे लेटे लेटे उस रिफ्रेन को सुन रहा हूँ, मीन्स उस साउंड ऑफ रेन को सुन रहा हूँ जो मेरे छत पे बज रही है, आई कैन फील दैट सी इज़ फॉन्डली लुकिंग एट मी, मैं फील कर पा रहा हूँ कि उस बारिश के साथ साथ मेरी माँ भी मुझे देख रही है, कहीं ना कहीं बहुत प्यार से देख रही है। विच इज़ प्लेड ऑन द सिंगल्स बाय द पैटर ऑफ द रेन, ओके, तो मैं उस रिफ्रेन को सुन रहा हूँ जो कि शिंगल्स पे, सिंगल मीन्स मेरे छत के टाइल्स पे एक सुरीला सा म्यूज़िक प्ले कर रहा है, ओके। सो रेन का जो पिटर पैटर नॉइस एक म्यूज़िक प्ले कर रहा है मेरे सिंगल्स के ऊपर, मेरे रूफ के ऊपर, एंड एज आई लिसन टू दैट, जैसे मैं यहाँ पे सोए सोए देख रहा हूँ, उसको सुन रहा हूँ, उसके साथ मैं ये भी फील कर पा रहा हूँ दैट माई मदर इज स्टिल विथ मी, इज स्टिल लुकिंग एट मी वेरी फॉन्डली, ओके, दैट इज इट, हो गया। आई होप यू अंडरस्टैंड द पोएम प्रॉपरली। इफ यू हैव एनी मोर डाउट यू कैन आस्क मी ऑन व्हाट्सएप। सो what exactly the poet wants to say through this poem, that rain has a soothing, calming effect, okay, as he listens to the rain all the sweet memories come to his mind, right। जैसे ही वो रेन को सुनते हैं उनका माइंड एकदम काम हो जाता है, वो ब्लीसफुल फील करते हैं और सारे अच्छे मेमोरीज उनके मन में आते हैं। ऑफ कोर्स हु डजंट फील गुड टू थिंक अबाउट देयर मदर, एंड वी कैन अंडरस्टैंड दैट हिज मदर इज़ नो मोर, राइट। हम ये तो समझ सकते हैं कि उनकी मम्मी अब जिंदा नहीं है। कैसे समझ में आया, लुक एट दिस लाइन, एज सी यूज्ड इन ईयर्स अगोन, तो जैसे वो सालों पहले किया करती थी, तो सालों पहले किया करती थी क्योंकि वो सालों पहले ही जिंदा थी, अब नहीं है, राइट। सो ही इज़ मिसिंग हिज मदर एंड ही इज़ थिंकिंग अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स अलॉन्ग विद द साउंड ऑफ रेन। तो रेन क्या करता है, हमारे माइंड को एकदम काम कर देता है, तब वो सारे अच्छे थॉट्स, अच्छे मेमोरीज निकल के आते हैं जो कहीं ना कहीं माइंड में हम दबा देते हैं, राइट। सो दिस इज़ द थीम ऑफ द पोएम, दैट रेन हैज़ अ सूदिंग इफेक्ट। इफ़ यू थिंक ऑफ सम अदर थीम यू कैन शेयर विथ अस, ओके। So here are some word meanings. I have also given some additional word meanings to you. You have to write it in your notebook, and along with that I have given you a note of all the poetic devices, or you can say literary devices used in this poem, okay। वो सारे literary devices का मैंने आपको एक note दिया है, because last time when we were reading wind you people had got confused about the literary devices, so you have to write those literary devices in your notebook, and let me just explain them to you. So यहाँ पे क्या क्या literary devices used हुए हैं according to me. The first one is alliteration. Alliteration क्या होता है? Alliteration is the repetition of a consonant sound in the beginning of two or more adjacent words. अगर कहीं पे भी पोम में दो या फिर दो से ज़्यादा ऐसे वर्ड्स होंगे जो एडजेसेंट होंगे, एडजेसेंट मीन्स पास पास होंगे, और उनके बिगिनिंग में, उन वर्ड्स के बिगिनिंग में कोई एक पर्टिकुलर कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट किया गया होगा, तो उसको एलिटरेशन कहेंगे। हाउ कम, लेट अस लुक एट सम ऑफ द एग्जाम्पल्स। ह्यूमिड हॉवर, देख रहे हो, ह्यूमिड हॉवर,
ये दोनों सेम ही लाइन में है, दो एकदम पास पास नहीं है, शैडो उनके बीच में फिर भी चलता है, ठीक है, एटलीस्ट एक लाइन में होने चाहिए. ह्यूमिड हॉवर, दोनों वर्ड्स के बिगिनिंग में एच साउंड जो है, एच इज अ कॉन्सोनेंट, एच साउंड रिपीट हो रहा है, सो इट्स एन एग्जाम्पल ऑफ एलिटरेशन. स्टारी स्फीयर्स, लुक एट द सेकेंड लाइन, स्टारी स्फीयर्स, दोनों वर्ड्स के स्टार्टिंग में एस साउंड जो है रिपीट हो रहा है. कॉटिस चैम्बर, कॉटिस चैम्बर, नो नो, दो सी है लेकिन कॉटिस में क का साउंड आ जाता है, राइट, के का साउंड, तो ये एलिटरेशन का एग्जाम्पल नहीं हुआ. और क्या है, लाई लिसन, लाई लिसन इज एन एग्जाम्पल ऑफ एलिटरेशन. देन प्रेस पिलो भी है, प्रेस पिलो, व्हाट अ ब्लिस टू प्रेस द पिलो, प्रेस पिलो, दोनों ही पी साउंड को रिपीट करते हैं इन द बिगिनिंग ऑफ देम, तो ये भी एक एलिटरेशन हो गया. और कोई एलिटरेशन है, इफ़ यू कैन फाइंड आउट लेट मी नो. आई थिंक और एक मैंने देखा था, हाँ, डार्लिंग ड्रीमर, डार्लिंग ड्रीमर, ये दोनों वर्ड्स के बिगिनिंग में डी साउंड जो है रिपीट हो रहा है, सो इट्स एन एग्जाम्पल ऑफ एन एलिटरेशन. ओके, आई होप इट इज क्लियर. देन द नेक्स्ट वन, और क्या पोइटिक डिवाइस है इसमें, आप इनको पोइटिक डिवाइस भी कह सकते हो, लिटरेरी डिवाइसेस भी कह सकते हो, नो प्रॉब्लम. I think personification is there. Look at the third line. And the melancholy darkness gently weeps in rainy tears. ये जो दुखी सा डार्कनेस है वो रोने लग जाता है. तो क्या डार्कनेस रोता है कभी? Of course not. लोग रोते हैं, इंसान रोते हैं, बट यहाँ पे डार्कनेस को एज अ पर्सन ट्रीट किया गया है. सो ट्रीटिंग अ नॉन लिविंग थिंग एज अ लिविंग थिंग is called personification. Okay, actually the definition is attributing the living characteristic in a non-living thing. एक non-living thing में living thing के characteristics को attribute करना, उसमें डालना, that is called personification. Okay, तो यहाँ पे poet ने darkness को रुलवाया है, तो बोलते हैं कि darkness रोता है, so that is why it's an example of personification. Then the third poetic device that has been used here is onomatopoeia. Okay, onomatopoeia, इसका spelling क्या होता है, ONOMATOPOEIA. Okay, onomatopoeia ऐसे pronounce करोगे. What is onomatopoeia? Onomatopoeia we had already discussed in class. It's a word which refers to a sound. Okay, ये एक word होता है, उस word का कोई meaning नहीं होता, बल्कि वो एक sound को refer करता है. जैसे यहाँ पे कौन सा वर्ड है विच रेफर्स टू अ साउंड, टेल मी, पैटर, राइट, पैटर मीन्स द साउंड ऑफ रेन, सो पैटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ एनोमैटोपिया. एंड टिंकल भी हो सकता है, टिंकल, टिंकल इज द साउंड ऑफ रेन, सॉरी, टिंकल इज द साउंड ऑफ एनीथिंग दैट इज रिंगिंग. ओके, कोई रिंगिंग साउंड को हम टिंकल बोलते हैं. सो दिस आर द एग्जाम्पल्स ऑफ एनोमैटोपिया. तो ऐसे बहुत सारे वर्ड्स आप सुने होंगे, डिंग डोंग वेंट द बेल, तो डिंग डोंग वेंट द बेल, इसमें डिंग डोंग का क्या मतलब होता है, नथिंग, मीनिंग कुछ नहीं होता, ये बस उस साउंड को बताता है जो वहाँ पे क्रिएट हो रहा है. ही सैट डाउन थम्प्ड अगेंस्ट द, सॉरी, ऑन द फ्लोर. ओके, वो फ्लोर पे थम्प करके बैठ गया, तो ये थम्प वर्ड का कोई मीनिंग नहीं होता, इट्स अ साउंड. ओके, हिसिंग, ट्रम्फेट, ट्रम्फेट जो एलिफेंट का साउंड होता है, हिसिंग इज द साउंड ऑफ स्नेक, ये सब एक एक एग्जाम्पल है एनोमैटोपिया का. ओके, इफ यू कैन फाइंड एनी अदर पोएटिक डिवाइसेस लेट मी नो. So read this poem once again, and if you have any doubt just share it, and we will meet in Zoom, okay, to discuss the question answers of The Little Girl and Rain on the Roof. Thank you.